ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਕਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1920 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ 1913 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੇ ਬਗਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੋਰਚੇ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1913 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22-23 ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 1964 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ
वो सारे अंग्रेज़ां दे राज विच लगे सन, अंग्रेज काल दे विच। पर ये जिहड़ा मोर्चा सी, जिस तरह कि आप जी नूं पता है 1947 दे विच देश आज़ाद हुंदा है ते 1947 तो बाद जिहड़ा है अपने देश दे विच अपने लोकां दा राज हुंदा है। पर अपने लोकां दे राज दे विच भी सिखां दी हालत उही मोर्चे जिहड़े अंग्रेज दे राज च लगदे सन, उही मोर्चे हुण हिंदुस्तानी राज च लगदे ने। विलक्षण ये गल सी। पहले मोर्चों दे विच अंग्रेज सरकार सामने खलोती हुंदी सी, पर इस मोर्चे दे विच हिंदुस्तानी सरकार सामने खलोती। दूसरा, इस मोर्चे का 40 साल बाद लगन का कारण यह सी कि एक परिवार, एक महंत परिवार जिहड़ा इस गुरुद्वारा साहिब जी की सेवा संभाल करता सी, वो बड़े श्रद्धालु सन। जदों 1920 तो बाद गुरुद्वारियां दा प्रबंध जिहड़ा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन आउंदा है, उस वेले इस गुरुद्वारे का जिहड़ा महंत है भाई लहणा सिंह, जिहड़ा कि गुरसिख है, गुरु की भाव भावना वाला है, सेवा भावना वाला है, वो आप पाउंटा साहब तो चल के श्री दरबार साहब हरमंदर साहब पहुँचता है ते गुरुद्वारे के प्रबंध दियां चाबियां अपने नाल खड़दा है ते उत्थे जाके सिख संगत दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वीरां दे जथे दे विच जाके वो चाबियां रख दिंदा है। कहंदा है कि पाउंटा साहब जी का जिहड़ा गुरुद्वारा साहब का जिहड़ा प्रबंध है वो आप जी चलाउणा करो। पर पूरा पंथ उन्हां दा मान सत्कार रखदा है। दो कारण ने। पहला कारण तो एक ही एक पूर्ण तौर पर रहतमान सिख है, गुरु की भाव भावनी विच रहिंदा है, सेवा भावना वाला है। ते दूसरा कारण ये है कि ये जिहड़ा भाई लहणा सिंह है, जदों जलियांवाले बाग का कांड वापरिया सी 1919 दे विच, उस वेले ये भाई लहणा सिंह उस जलियांवाले बाग दे जलसे दे विच भी उपस्थित सी। पर गुरु साहब ने कृपा की, ये उस घटनाक्रम दे विच बच गया। सो ये भी कारण सी कि पंथ विच इन्हां दा सत्कार सी। ते जिहड़ी सब तो वड्डी गल सी वो ये सी कि गुरसिखां दा महंतां दे नाल कोई जाति रोस विरोध या दुश्मनी नहीं सी। सिर्फ कारण इन्ना सी कि गुरसिख राहे बगाए इन्हां महंतां नूं ये गल समझाउंदे रहिंदे सन या दसदे रहिंदे सन कि असीं प्रबंध नहीं लेना चाहुंदे। जे तुसीं अपना जीवन उच्चा सुच्चा बनाई रखो, सेवा भावना वाला बनाई रखो, रहत मर्यादा दे विच परपक्क रहो, ते ये प्रबंध तुसीं ही चला सकदे जी। सो उन्हां गुरु घरां दा या गुरुद्वारे साहिबां दा प्रबंध ही गुरसिखां ने अपने हत्थ च लिया सी, जिथे दे महंत जिहड़े सी जिन्हां दे जीवन दे विच गिरावट आ गई सी। सो खैर ये दो पक्षां करके ये भाई लहणा सिंह महंत जिहड़ा गुरुद्वारा पाउंटा साहिब दे सन, ये पंथ विच सत्कारे जांदे सन। सो पंथ ने यह फैसला किया कि नहीं, आप जी गुरु की खुशियां लै रहे जे सेवा करके, आप जी का जीवन भी उच्चा सुच्चा है, सो आप जी ही सेवा संभाल करो पाउंटा साहब जी की। तकरीबन 3 पीढ़ियां इन्हां ने सेवा की है। भाई लहणा सिंह जी दे पिता जी ने भी की उत्थे पाउंटा साहब सेवा, भाई लहणा सिंह ने भी की। इस करके ये गुरुद्वारे का जिहड़ा प्रबंध सी
वो 1920-21-22 के लागे शागे इस गुरुद्वारे का मोर्चा नहीं लग्या, क्योंकि महंत जिहड़ा सी वो जीवन दे विच गुरु की भाव भावनी वाला सी। सो समा बतीत होया, समा गुजरिया। भाई लहणा सिंह जी अकाल चलाना करे गए। उन्हां तो बाद उन्हां दा जिहड़ा बेटा सी जिहदा नाम गुरदयाल सिंह सी, वो अपने पिता जी की सेवा दे अहुदे उत्ते पहुँचते ने। पर ये जिहड़ा भाई गुरदयाल सिंह है, इसका जीवन उन्ना उच्चा अते सुच्चा नहीं सी जिन्ना इन्हां दे पिता दा सी। सो इस करके पाउंटा साहिब गुरुद्वारे दे नां जिहड़ी प्रॉपर्टी सी, जमीन जायदाद सी, उस नूं निजी तौर ते गुरदयाल सिंह वरतन लग पिया। जदों आप जी नूं पता है पैसा शौहरत सुख दे साधन ज़्यादा होण ते जीवन दे विच मैक्सीमम % गिरावट आउणी सुभावक हो जाती है। सो इस दे जीवन दे विच भी त्रुटियां आउणियां आरंभ हो गईयां। ऐशो इशरत करके ये भी गिरावट वाले पासे जान लगा। सो इस दी करनी दा जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तक गल पहुंची, होर पतवंते कौम दे पंथ दे उगे सज्जना तक गल पहुंची। सो उस वेले मता पास किया गया ते निहंग सिंह जथेबंदी, आप जी नूं पता ही है, जिहड़े दो दलों दे विच विचरदे सन पुराने समय तो लैके हुण तक, बुढ़ा दल ते तरना दल। उस वेले इन्हां दे इस केस नूं विचारण वास्ते निहंग सिंह जथेबंदी बुढ़ा दल को इन्हां दा केस पहुंचिया। बुढ़ा दल दे उस वेले जिहड़े जथेदार सन, वो जथेदार निहंग सिंह चेत सिंह जी सन। सो उन्होंने सारे केस नूं वाचिया अते गुरदयाल सिंह दे नाल भेंट कीती, सारी वार्ता सुनी अते समझाई। इस तो बाद उन्होंने निहंग सिंह जथेदार साहब पासों मुआफ़ी मंगी गुरदयाल सिंह होना ने, अते नाल ही बाबा जी हुणा ने गल कही कि असी तुहाडे को प्रबंध नहीं खोना चाहते, पर आप जी सेवा भावना दे नाल अपना जीवन उच्चा सुच्चा करके ते सेवा करो गुरु की मर्यादा दे विच आण के। सो उस वेले गुरदयाल सिंह हुणा ने बाबा चेत सिंह जी हुणा दे जत्थे पासों अमृतपान किया। अमृत छक के वो गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध सामण लग पे। सो उस नूं प्रबंध सौंप के फिर बाबा चेत सिंह हुणी वापस पंजाब परतदे ने। कुछ समा ते ठीक निकलदा है गुरदयाल सिंह दा, पर गुरदयाल सिंह जिहड़ा सी बड़ा ही चलाक चुस्त बिरती दा मालक सी। सो इसने की कीता कि राहे बगाए अंदर ही अंदर मौके दी सरकार दे नाल काफ़ी नेड़ता वधाई। मौके दी सरकार दे नाल रल मिल के अपनी पावर वधा के फिर कुछ समय बाद इसने उही कर्म करने आरंभ कर दिते जिहड़े पहले करते सन। गिरावट वाले पासे जीवन गया। इस दियां गल्लां फिर कौम विच पंथ विच होणियां आरंभ होईयां। उत्थों दी जिहड़ी संगत है, उत्थे दे पाउंटा साहिब दे लागे शागे जिहड़े पिंडां दे विचों जिहड़ी संगत आउंदी सी, उन्हां ने जदों देखिया, उन्हां ने इस दियां जिहड़ियां गल्लां है वो मुनासिब समझिया कि असी पंथ दे पतवंते सज्जना तक ये गल्लां जरूर पहुँचाइए, क्योंकि इन्हां दी रहत मरादा विच ढिलाई आ गई, इन्हां दे जीवन दे विच गिरावट आ गई है। सो उत्थे दे लोकल पिंडां दे जिहड़े गुरसिख माई भाई जदों गुरुद्वारियां दे दर्शन करने वास्ते पंजाब वाल आउंदे ते उत्थे दे महंत दियां वधीकियां दी गल करदे
एक जथा उस समय उन्हां पिंडां दे विचों दर्शन दीदारे करदा होया गुरुद्वारा हरियां बेला साहिब हुशियारपुर विखे स्थित है। निहंगा सिंघां दी छावनी उत्ते उत्थे दर्शन करन पहुंचिया। तरना दल नाल संबंधित है ये सिंघां दा जथा। उस वेले तरना दल दे जेड़े मुखी सन बाबा हरभजन सिंह जी वो उत्थे मौजूद सन। सो उस जथे ने बाबा हरभजन सिंह हुणां नूं बेनती की कि गुरदयाल सिंह महंत जिहड़ा है वो अमृत छकन तो बाद फिर भी अपनियां माड़ियां कुरीतियां तो नहीं बाज आया ते उस बारे थोड़ा जिहा पंथ नूं सोचना पैना है ते गुरुद्वारे के प्रबंध दे विच भी बड़ी ढिलाई आ गई है। सो ये गल जिहड़ी है तरना दल दे मुखी निहंग सिंह बाबा हरभजन सिंह जी हुणां तक पहुंची। उन्होंने जो इस गल बारे विचार की ते आप जी नूं पता सी कि अगे भी एक बार यह मसला भखिया सी ते उदों बुढ़ा दाल जी दे जिहड़े जथेदार ने बाबा चेत सिंह हुणी उन्हां नाल गल कीती सी गुरदयाल सिंह हुणां नाल। सो बाबा हरभजन सिंह जी हुणी ये मुनासिब समझते ने कि बाबा चेत सिंह जी हुणां नाल बुढ़ा दाल दे जथेदार साहब हुणां नाल ये गल फिर एक बार विचार की जाए। सो बाबा चेत सिंह जी हुणां नाल जदों ये गल ते विचार हुंदी है उस तो बाद आनंदपुर साहब जी होले महल्ले के जथेबंदियां निहंग सिंह जथेबंदियां इकट्ठियां हुंदियां ने उत्थे गल हुंदी है। बाबा चेत सिंह जी ये विचार रखते ने पंथ गाड़ी कि वह भी साडा भरा है उन्हें प्यार नाल समझाया जाए। एक जथा जिहड़ा है छोटा जिहा जथा जिहदे विच 15-20 सिंह होण वो पाउंटा साहब विखे पहुंचण ते उत्थे जाके इस महंत दियां कीतियां कुरीतियां दे फल वजों उन्हां नूं बख्शाउण वजों 101 अखंड पाठ साहिबां दी लड़ी चढ़ाई जाए। सो इस जथे अधीन तकरीबन 15 तो 20 सिंह जिहड़े उन्हां दा जथा बनदा है ते इस जथे की रहनुमाई जिहड़ी है बाबा चेत सिंह जी हुणी जिहड़े बुढ़ा दल दे मुखी ने उस वेले जथेदार ने वो करते हैं ते नाल ही सारे सिंघां नूं समझा दिंदे ने कि शांतमई असी ये सारा वर्तारा करना है, कोई जुल नहीं करनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं असी करना, क्योंकि सारे भरा ने सारा पंथ जिहड़ा है सारी कौम जिहड़ी है वो भरा मारू जंग दे विच ना पै जाए। खैर सो ये जथा जिहड़ा है 1964 दी गल है पाउंटा साहब विखे पहुंचता है ते पाउंटा साहब विखे अखंड पाठ साहब जी की लड़ी आरंभ कर दिंदा है। इस जथे दे सिंह जिहड़े ने लड़ी वार किसी नूं भी माड़ा चंगा बोले बगैर अखंड पाठ साहब दी लड़ियां चला रहे ने। लंगर उत्थे लगने आरंभ हो जाते हैं, गुरु के समागम उत्थे आरंभ हो जाते हैं, लागे शागे पिंडां तो संगत आउणी आरंभ हुंदी है, संगत लंगरां च सेवा करती है, बाणी पढ़ती है, एक बहुत ही वधिया माहौल जिहड़ा उत्थे बन जांदा। सो तकरीबन 22 अखंड पाठ साहिब संपूर्ण हो जाते हैं ते 23वां अखंड पाठ साहिब जिहड़ा वो आरंभ हुंदा है। बड़ी सुख शांति दे नाल समा लंघ जाता है, क्योंकि निहंग सिंह जथेबंदियां उत्थे जाके किसी नूं कोई माड़ा चंगा नहीं कहंदियां, ना गुरदयाल सिंह नूं डराया धमकाया जाता है, बस सेवा वाले पासे ध्यान हुंदा। सो तकरीबन 22 अखंड पाठ साहिब संपूर्ण हुंदे ने। 23वां अखंड पाठ साहिब आरंभ किया जाता है ते इस पासे जिहड़ा महंत गुरदयाल सिंह है वो अपना असर रसूख विखा के मौके दी सरकार दे नाल उहदी पूरी गलबात है। सो सरकारी पावर सदका सियासत अधीन
वो पुलिस ऑफिसर को कहा कि बाबा चेत सिंह जी हुणां नूं अपने रैसट हाउस विखे बुलाउंदे ने ऑफिसर कि बाबा जी आओ तुसी भी आओ तो इधरों गुरदयाल सिंह महंत नूं भी बुला लेने ते तुहाडा जिहड़ा समझौता करवा देने, कॉम्प्रोमाइज़ करवा देने। ते बाबा चेत सिंह जी कहंदे बहुत चंगी गल है क्योंकि वो भी साडा भरा, इस तरह जे बह के गल निबड़ जाए तो बहुत चंगी गल है। पर एक उन्हां दी शातिर चाल हुंदी है। जदों जथेदार बाबा चेत सिंह जी जिहड़े बुढ़े दल दे उस वेले निहंग सिंह जथेबंदी दे जथेदार ने वो रैसट हाउस पहुँचते ने ते बड़ी चलाकी दे नाल उत्थों उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जाता। गिरफ्तार करके ते उन्हां नूं कैद विच रखिया जाता ते इधरों एक पुलिस का दस्ता जिहड़ा है वो गुरुद्वारा साहिब वाल भेज दिता जाता। उन्हां नूं ये लगदा है कि जदों असीं जथेदार नूं गिरफ्तार कर लिया तो साडे अगे कोई अड़ नहीं सकता क्योंकि कमांड करने वाला कोई नहीं होएगा। सो बाबा चेत सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया जाता ते पुलिस की एक फोर्स जिहड़ी है वो गुरुद्वारा साहिब पाउंटा साहिब वाल नूं तोड़ दित्ती जाती, भेज दित्ती जाती। उत्थे पहुँच के गुरुद्वारा साहिब नूं चारों पासों तो घेरिया जाता। घेर के पुराने समय दे विच जिहड़ा वो एक छोटा शोल्डर स्पीकर जिहड़ा माइक हुंदा उस दे अधीन जिहड़ी है गलबात राही पुलिस जिहड़ी है निहंगा सिंघां नूं कहंदी है कि तुसीं गुरुद्वारा साहिब दे बाहर आ जाओ। गुरुद्वारा साहिब दे अंदर तकरीबन उस वेले 11 सिंह उपस्थित हुंदे ने, जिहदे चों 8 सिंह अंदरले पासे हुंदे ने ते 3 सिंह बाहरले पासे हुंदे ने। सो गुरुद्वारा पाउंटा साहिब विखे अखंड पाठ साहिबां दी लड़ी चल रही हुंदी है ते सिंह जिहड़े ने जिहड़े बाहर सिंह ने वो बेनती करते हैं पुलिस नूं क्योंकि अखंड पाठ साहिब चल रहे हैं, इस करके असीं बाहर नहीं आ सकते, अखंड पाठ साहिब खंडित नहीं कर सकते। 22 अखंड पाठ साहिबां जी दे भोग पै गए ने ते तीम है ते असीं 101 करने ने। सो अगले क्षण पुलिस कर्मचारी ये मैं बेनती करदा इस साखे की विलक्षणता यही है कि बाकी साखे जिन्ने भी होए ने वरते ने वो सारे अंग्रेज़ों के समय वरते ने, पर यह 1964 दे विच गुरुद्वारा पाउंटा साहिब जी का जिहड़ा साका है ये वरतदा है, ये हिंदुस्तान की सरकार के अधीन वरतदा है। आप जी भारत वर्ष का इतिहास पढ़ के वेख लो, बड़ी अचंभे की गल है 1947 दे विच जदों देश आज़ाद हुंदा उस तो पहला भी सिंह मोर्चे लाउंदे रहे ते 1947 तो बाद जदों आज़ाद हुंदा जदों गोरियां दे समय ने उदों भी मोर्चे लगे। 47 तो बाद आज़ादी तो बाद भी सिंह मोर्चे ही लाउंदे रहे। पहला भी साकियां दे विच गोलियां ही नसीब होंदियां, शहादतां ही ते आज़ादी तो बाद भी। खैर आपां उस पासे ना जाइए, पर सब तो वड्डी विलक्षण गल ये सी, ये एक बार नहीं होया। खैर 84 तो सानू याद है, पर यह पहला भी होंदा रहा। 66 दे विच भी होया, 64 दे विच भी होया। जदों हिंदुस्तान आज़ाद होया सब तो पहला जिहड़ा सर्कुलर पास होया, आप जी नूं ख्याल होएगा, सब तो पहला आज़ादी का तोहफा जिहड़ा मिलिया सी सिखां नूं, उस सर्कुलर विच 3 चीज़ां लिखियां गईयां सी जिहड़े देश के हर जिले दे विच पहुंचिया सी, जिन्हों असीं अज भी उस लाओ नूं धारा नूं याद करदे हां कि सिख जिहड़ी है एक हिंदू धर्म की शाखा है ते सिखां दे विच जिहड़े मजहबी सिंह ने, सिख जात पात नहीं मानता, पर उन्होंने सर्कुलर दे विच ये गल ऐड की सी कि जिहड़े सिख हरिजन ने उन्हां नूं दूजे हरिजनां वांगू सुविधावां नहीं मिलणगियां। उहदा कारण की सी कि ये सिख धर्म छड्ड के तो दूजे धर्म दे विच आ जाण। सो तीसरी जिहड़ी गल सी उस सर्कुलर दे विच लिखी सी कि सिख एक जराइम पेशा कौम है। खैर आपां उस विषय वल ना जाइए। सो चौड़ दे विच जिहड़ा वरतारा वापर रहा पाउंटा साहिब गुरुद्वारे के प्रबंध नूं लै के
सिख जिहड़े ने सिंह अंदर बैठे ने तो ये गल करते ने, कहते कि अखंड पाठ साहब जिहड़ा आरंभ है खंडित नहीं किया जा सकता। तो साडे जथेदार साहब बाबा चेत सिंह होनी बुढ़ा दल के जिहड़े जथेदार ने वो गए ने, अफसरां को गलबात हो रही है बैठ के, पर यह नहीं पता सिंघां नूं कि बड़ी चलाकी दे नाल बाबा चेत सिंह जी हुणां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। खैर दूजे क्षण ये पुलिस फोर्स जिहड़ी है कोई गल नहीं सुनती ते फायरिंग करनी आरंभ कर दिंदी चौवां पासों। जिस तरह असीं सोचते हैं ना कि 1919 दे विच जलियांवाले बाग दे विच ओह अडवायर दे हुक्म दे नाल ये सारा वर्तारा वापरिया, सेम उस तरीके नाल, पर इस इतिहासक पक्ष का बहुत घट सानूं जिहड़ा ज्ञान, बहुत घट विचार हुंदी है इस पक्ष की। कुदरती अज दिन भी वही है। सो अंधाधुंध फायरिंग हुंदी है जिहदे विच गुरुद्वारा साहिब दे अंदर जिहड़े सिंह बैठे ने 8 सिंह अंदर, 11 विचों 8 सिंह जिहड़े ने वो शहीद हो जाते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। जिहड़ा सिंह अखंड पाठ साहिब जी की सेवा लगा रहा है, ड्यूटी कर रहा है बाणी पढ़न की, जो गोलियां वजदियां वो गुरु साहिब जी के स्वरूप नूं दोवें हत्थां नाल गलवकड़ी के रूप दे विच सेव करना चाहुंदा, पर आप जी सियाणे जे हत्थां दे नाल गोली नहीं रुकदी। खैर उहदे हत्थां दे विचों गोलियां लंघ जांदियां ने, पर वो फिर भी बाणी पढ़ता रहिंदा है। ते एक पुलिस कर्मचारी अगांह वध के जो उन्हां दी पुरानी रवायत है क्रूरता वाली, जोड़ियां सने गुरुद्वारा साहिब के अंदर एंटर करते ने ते उस सिंह दी छाती दे विच एक गोली मारते ने ते उस सिंह ताबिया दे उत्ते ही शहीद हो जाता है। उस सिंह दे पिछले पासे एक सिंह जिहड़ा चौर साहिब जी की सेवा कर रहा हुंदा, जिन्हां दा नाम हुंदा भाई निहाल सिंह जी, जिन्हां दे दर्शन तुसीं अज भी करदे जे जदों आप जी हुशियारपुर दे लागे गुरुद्वारा हरियां वेला साहिब जाते जे। अज उस जथे के जिहड़े जथेदार ने वो बाबा निहाल सिंह जी ने अज भी गुरु साहिब की कृपा नाल मौजूद ने। सो वो चौर साहिब जी की उदों उन्हां दी आयु छोटी हुंदी है, बचपन दी हुंदी है, तकरीबन 11 के लागे शागे उन्हां दी आयु जिहड़ी उस वेले होएगी अंदाजन। गुरु साहिब जी नूं चौर कर रहे हुंदे ने, जदों ताबिया बैठा निहंग सिंह शहीद हो जाता है ते बाबा निहाल सिंह होनी जिहड़े उस वेले बचपन की अवस्था च ने, वो सोचते हैं कि अखंड पाठ साहिब खंडित ना हो जाए, तो उस सिंह नूं परे करके ते आप बैठना चाहते हैं। वेखो गुरु के प्यार वालिओ, ये वो पंथ है जिहड़ा अपने गुरु की शरण दे विच, गुरु की ताबिया दे विच, वरदियां गोलियां दे विच भी बहनों नहीं झिझकता। ये गल वखरी है कि अज असी जे एक सहज पाठ आरंभ कर लीए तो सानूं ये लगता कि एवें पंगा ही लै लिया, सारा साल हो गया अखंड पाठ साहिब संपूर्ण नहीं हो रहा। गल शरदा दी ते प्यार दी। खैर सो जो निहाल सिंह जी हुणी बैठन लगते हैं तो एक गोली उन्होंने भी आण के वजदी है, जो गोली वजदी है तो डिग पेंदे ने। एक सिंह उस वे नगारे ते है, वो नगारा वजा के ते दूसरे सिंघां नूं अलर्ट करना चाहुंदा है, वो हजे नगारे ते नगारा वजाउण लगदा है ते उसनूं भी गोली वजदी, वो भी सिंह शहीद हो जाता है। तकरीबन अंदर सारे सिंघां नूं गोलियां वजदियां, बाहर भी 3 सिंह शहीद हुंदे। इस वर्तारे दे विच तकरीबन 11 सिंह जिहड़े ने वो शहीद हुंदे ने। 8 सिंघां दीयां जिहड़ियां डैड बॉडीआं ने वो गुरुद्वारा साहिब दे अंदर ने। 3 डैड बॉडीआं जिहड़ियां ने वो बाहर पईआं हुंदियां ने गुरुद्वारा साहिब दे, ते 3 सिंह जिहड़े ने बहुत गंभीर रूप विच जख्मी हो जाते, गोलियां उन्हां दे भी वजदियां। उन्हां विचों बाबा निहाल सिंह जी हुणी जिहड़े हुण इस वेले मौजूदा उस तरना दल निहंग सिंह जथे के मुखी ने, सेवा कर रहे हैं गुरुद्वारा हरियां वेला साहिब। सो उस वर्तारे दे विच एक घमासान की गोलीबारी विच 11 सिंह शहीद हुंदे ने, जिहदे चों 8 सिंघां दे शरीर जिहड़े ने वो मौके की जिहड़ी सरकार है, पुलिस कर्मचारी गड्डियां ते लद के जंगल विच जाके ते उस वेले संस्कार कर दिंदे ने। फर्श सारा लहू दे नाल भिज्जिया हुंदा है, उस वेले कपड़े दे नाल फर्श साफ किया जाता है, सबूत मिटाए जाते हैं
तकरीबन 47 गोलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹ गुरुद्वारा साहब के हदूद अंदरले पासे कंधां विच ਵੱਜਦੀਆਂ ने। ते आप जी सोच सकते हो कि 11 ਸਿੰਘਾਂ वास्ते कितनी फायरिंग हुई होगी। 47 गोलियां के निशान ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, जिन्हां दे निशान नहीं लभे वो वक्रे, वो निशान मिटाउण की कोशिश की जाती है। उत्थे फिर सीमेंट दे नाल प्लास्टर करन की कोशिश की जाती, पर निशान उत्ते ही दिखते हैं। जिहदे विचों 8 ਸਿੰਘਾਂ दे संस्कार उस वेले जंगल विच जाके कर दिते जांदे ने। 3 ਸਿੰਘ जिहड़े बाहरले पासे जिन्हां दे शरीर डैड बॉडीज पईयां हुंदियां ने, उन्हां नूं भी सरकार चुक के लै जाती है। पर यह गल जिहड़ी है पंथ दे विच अग वांगू फैल जाती है, तो सारा पंथ जाके ते पाउंटा साहब विखे इकट्ठ करता है। सो पंथ की इस इकत्तरता नूं वेख के मौके की सरकार थोड़ी जी डर जाती है, घबराउंदी है, डोल जाती है। सो मते पास हुंदे ने, उहदे विच बाबा चेत सिंह जी की रिहाई हुंदी है, ते पंथ के सामने सरकार नूं झुकना पैंदा। ते उस गुरुद्वारे का प्रबंध जिहड़ा है, गुरुद्वारा पाउंटा साहब जी का, जिहदे दर्शन आप जी करते हो, निहाल हुंदे हो। कई संगतां तकरीबन जिन्नियां भी संगतां दरबार हेमकुंड साहब जी के दर्शनां नूं जांदे आउंदे जांदे उस गुरुद्वारे रुकदे ने, दर्शन करते हैं। उस दा प्रबंध फिर पंथ नूं मिलदा है 1964 दे विच। ते जिहड़े वो 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ डैड बॉडीज बाहर पईयां हुंदियां ने, वो तिन्नां ਦੀਆਂ डैड बॉडीज जिहड़ियां ने 22 मई नूं जिहड़ी सरकार है सिखां दे हवाले करदी है। ये वरतारा 22 मई नूं हुंदा है। 23 मई नूं ये डैड बॉडीआं जिहड़ियां पंथ नूं 3 डैड बॉडीआं जिहड़ियां ने वो दिंदे ने। ते अज दे दिन 24 मई नूं सारा पंथ, क्योंकि बाकी 8 जिहड़े सिंह जिहड़े शहीद होए सी उन्हां दा संस्कार उसे वेले सरकार जिहड़ी है जंगल दे विच जाके कर दिंदी है कि सबूत मिटा दिते जाण। सो ये 3 ਸਿੰਘਾਂ दा जिहड़ा संस्कार सी वो अज दे दिन 3 मई 1964 नूं सारा पंथ रल मिल के करदा है। ते उस दिन तो 24 मई 1964 तो अज तक उत्थे दा भी प्रबंध जिहड़े ने वो सिख पंथ दे कोल पाउंटा साहब गुरुद्वारा साहब जी का जिहड़ा प्रबंध है वो आउंदा है। इस तरीके नाल ये सारा साका वापरदा है। सो उस दिन तो बाद ही आप जी जदों भी बाबा निहाल सिंह जी होनी, निहंग सिंह जत्था, तरना दल सर्च करोगे तो उन्हां दे नां दे नाल उन्हां नूं जिंदा शहीद का खिताब दिता गया पंथ वल्लों। इस वरतारे तो बाद ही कि उस वेले भावें आप जी बचपन की अवस्था च ही सी, पर गोलियां दे सामने खलो के गुरु साहब जी की सेवा कर रहे सन। ते अखंड पाठ साहब की मर्यादा नूं भंग ना होण देण करके आप जी गुरु साहब जी की ताबिया बहना चाहुंदे सन। पर उस बहन दे एवज आप जी ने गोलियां खा लियां पर पिछे नहीं हटे। सो उस दिन तो बाबा निहंग सिंह जी नूं पंथ वल्लों एक खिताब जिहड़ा जिंदा शहीद ये प्राप्त होया। सो ये सारा साका, ये सारा वरतारा जिसका अज का इतिहास गुरु साहब जी ने कृपा की सांझ पाई है, क्योंकि इस वरतारे की बहुत घट गल जिहड़ी है कौम दे विच पंथ विच हुंदी है। सो एक